Hello students, welcome to my channel Knowledge Point. Students, today I am going to give you the solution of the chapter 7 coordinate geometry exercise 7.4. This is the optional chapter, perhaps according to the CBSE guidelines given in NCERT book, that these questions are not asked in the examination. But for the knowledge, what may be possible in the examination cannot be told. That's why the questions which are given in NCERT, which is very reliable questions for the students. That's why I want to describe this question's solution. Okay? Not take more time for the students. Just I'm going to start. Let me start first questions. Question number 1 है, determine the ratio in which the line 2x plus y minus 4 is equal to 0 divides the line segments joining the points A 2 minus 2 and B 3 7. So students, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, पॉइंट इज ए एंड 2 minus 2 द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए. बी पॉइंट द कोऑर्डिनेट इज 3 7. ज्वाइन दीज, ओके, एंड अ पॉइंट पी लेट with coordinate x y divides AB in the ratio k is to 1. So just let, okay, let point P with coordinate x y divides, okay, the line segment joining line segment AB, okay, joining points A with coordinate 2 minus 2 and B coordinate 3 7 in the ratio k is to 1. Okay, students, first of all, alternate using section formula. Okay, P x y is equal to 1 into 2 plus k into 3 by 1 plus k, and 1 into minus 2 plus k into 7 by k plus 1 plus k. Okay, so that means क्या हो जाएगा, 2 plus 3k by k plus 1. Okay, and this minus 2 plus 7k by k plus 1. So आप देख रहे हो कि x का वैल्यू ये है और y का वैल्यू ये है, एंड पॉइंट P जो है, पॉइंट P लाइज पॉइंट P, दैट मीन्स अब कोऑर्डिनेट आ गया 2 plus 3k by k plus 1, ओके, एंड minus 2 plus 7k by k plus 1. ओके, ऑन द लाइन इसका इक्वेशन देके दिया है 2x plus y minus 4, 2x plus y minus 4 is equal to 0. देन क्या होगा, रिप्लेस करेंगे एक्स वाई का वैल्यू. ओके, सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 2 और 2 plus 3k by k plus 1, ओके, प्लस y, दैट मीन्स minus 2 plus 7k by k plus 1 minus 4 equals to 0. यहाँ से k plus 1
जो एलसीएम होगा, और यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6 के और -2, ओके, और प्लस 7 के -4 के -4 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 7 के 6 के 13, 4 माइनस हो जाएगा तो 9 के, और ये आ जाएगा 4 4 कैंसिल, ओके, तो -2 इज इक्वल टू 0। सो k इक्वल टू 2/9। हेंस रिक्वायर्ड रेशियो स्टूडेंट्स, हेंस required ratio is 2:9. So that's finished question number 1 solution. Later on discuss question number 2. Find a relation between x and y if x, y 1 2 7 0 are collinear. As you know students, collinear that means 3 or more points lie on the same straight line. You see these 3 points A, B, C. Okay, coordinate x, y of A, 1 2 of B, 7 0 of C. These ABC are collinear. Okay, so let A x y B 1 2 C 7 0, okay, are collinear such that A, B and C lie on a straight line, okay. So let A and x1 y1 is equal to xy, B x2 y2 is equal to 1 2, and C x3 y3 equal to 7 0. Now area of triangle. Now area of triangle ABC is equal to 0, and ABC are collinear. That's why it is possible. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब हो गया 1/2 and x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, ये 0 हो गया। ये आपका 1/2 उधर जाएगा और 0 बार। अब x1 का वैल्यू पुट करेंगे तो x और y2 माइनस y3 2 माइनस 0 प्लस x2 क्या है भाई, x2 1 है, और y3 मीन्स 0 माइनस y1 मीन्स y प्लस x3 क्या है 7 एंड y1 मीन्स y माइनस y2 मीन्स 2 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स 2x और ये हो जाएगा प्लस सीधा ये 1 इंटू 0 माइनस y तो सीधा माइनस y दैट मीन्स माइनस y एंड दिस वन 7y माइनस 14 0। तो ये आपका क्या आ गया 2x और प्लस 6y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन लिया जाए, टेकिंग आउट 2 एज कॉमन, x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दैट्स y क्या हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, this is the required relation. So students, just solution of question number 2 completed. Question number 3 कहता है find the center of a circle passing through the points 6 minus 6 3 minus 7 and 3 3। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं
इस सर्कल पर 3 पॉइंट्स ए जिनके कोऑर्डिनेट 6 एंड -6, बी 3 एंड -7, सी 3 3। ये ओ सेंटर है, कोऑर्डिनेट एक्स वाई। ओ से ए को ज्वाइन कर दिया, ओ से बी को ज्वाइन कर दिया, ओ से सी। ओ ए ओ बी ओ सी रेडियस ऑफ द सर्कल। गिवन a circle with center O and a points A जिसके कोऑर्डिनेट 6 एंड -6, B 3 एंड -7 एंड C 3 3। ओके, आर on the circle। ओके, देन क्या हो जाएगा? रेडियो ए, रेडियस ओ बी, रेडियस ओ सी। ओके, फ्रॉम दिस टू ओ ए इक्वल टू ओ बी। यार फर्स्ट ओ ए इक्वल टू ओ बी चुनाव करते हैं। यहां से ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर मीन्स क्या हो गया? 6 - x होल स्क्वायर प्लस -6 - y होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी यानी 3 - x होल स्क्वायर प्लस -7 - y होल स्क्वायर। अब यहां से a माइनस बी होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर 36 प्लस x स्क्वायर -12x प्लस 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 12y इज इक्वल टू 9 प्लस x स्क्वायर -3 2 जा 6x प्लस 49 प्लस y स्क्वायर प्लस 14y। y स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों साइड है प्लस में, यहाँ -12x और प्लस 12y। फिर साइड चेंज करेंगे, 6x का प्लस 6x -14y। ये दोनों 36 36 72 और -49 एंड 9 58 इज इक्वल टू 0। -12x प्लस 6x -6x प्लस 12y -14y -2y और प्लस 72 -58 हो जाएगा ये 40 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां से जो है -2 कॉमन लिया जाए तो 3x प्लस y -7 इज इक्वल टू 0 और देन यहां से क्या आएगा? -2 डिवाइड कर देंगे तो 3x प्लस y -7 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1। वंस अगेन जो है OB इक्वल टू OC लेकर के और फिर हम यूज करते हैं नाउ OB इक्वल टू OC। तो OB मीन्स 3 - x। ओके, OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर। OB स्क्वायर यानी 3 - x होल स्क्वायर प्लस -7 -y का होल स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर। दैट मीन्स 3 - x होल स्क्वायर प्लस 3 - y होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गया, ये 49 प्लस 14y प्लस y स्क्वायर और ये 9 प्लस y स्क्वायर -6y
अब यहां से 14y प्लस 6y ओके इज इक्वल टू 9 माइनस 49। यहां से 20y आता है माइनस 40, तो y आता है माइनस 40 बाई 20 माइनस 2। अब ये y का वैल्यू इक्वेशन 1 में रिप्लेस करेंगे। ओके, रिप्लेसिंग y इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3x माइनस 2 माइनस 7 0, 3x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 बाई 3, तो x 3 आया और y माइनस 2, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट 3 एंड माइनस 2, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ओके इज 3 minus 2. Okay students, so just finished question number 3rd solution. Then after question number 4 है, कहता है the two opposite vertices of a square are -1 2 and 3 2. Find the coordinates of the other two vertices. So first of all स्क्वायर का एक कंस्ट्रक्शन कर लिया, जिसके ऑल 4 साइड्स जो है वह इक्वल होते हैं और ऑल एंगल राइट एंगल पर होते हैं। अब यहाँ से ए और सी जो अपोजिट वर्टिसेज है वो -1 एंड 2 और 3 एंड 2 है, और बाकी जो दो वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट बताने हैं उसमें बी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जो है कंसीडर कर लेते हैं। ओके, लेट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर विथ वर्टिसेज ओके ए -1 2 एंड सी 3 2. Let coordinate of point or vertex B, okay, vertex B bx y. अब यहां से देखिए कि AB और BC इक्वल है, स्क्वायर के साइड्स इक्वल होते हैं। सिंस AB इक्वल BC है तो इस आधार पर ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब यहां से ए बी स्क्वायर का मीन्स हो गया x प्लस 1 पर होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए y माइनस 2 का होल स्क्वायर या 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये दोनों जो है वह क्या है, इक्वल ही है। a माइनस बी होल स्क्वायर और b माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल है, सिंस a माइनस बी पर होल स्क्वायर इक्वल b माइनस ए होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। यहाँ से आएगा 2x प्लस 6x इक्वल टू 9 माइनस 1 ओके 8x इक्वल टू 8, सो x इक्वल टू 8 बाई 8, ये 1 आ गया। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ओके, ज्वाइन ए टू सी, तो राइट ट्रायंगल में इन राइट ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर का मीन्स हो गया 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस ओके 8 x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 12 8 + 1 का होल स्क्वायर प्लस
2 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, यानी -1 और x का वैल्यू आया है 1, तो -1 होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस वाई होल स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर मीन्स 3 माइनस बी सी, 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि x का 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड 2 माइनस वाई होल स्क्वायर, 2 माइनस वाई होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये तो 0 है तो कैंसिल हो जाएगा। अब 3 प्लस 1 4 होल स्क्वायर 16 इज इक्वल टू ये 2 होल स्क्वायर यानी 4 और प्लस ये 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, ओके, ये प्लस 3 में 1 गया 2 2 जा 4 प्लस अगेन 2 माइनस वाई होल स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, सॉरी 4y। अब यहां से देखिए 4 4 4 4 यानी ये कैंसिल हो गया। क्या हमारे पास रहा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये 0 हो गया इज इक्वल टू ये 2y स्क्वायर, ओके, और माइनस ये कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल, ओके, क्योंकि 4 4 4 4 16 और 16, तो 2y स्क्वायर और माइनस 4y माइनस 8y, दैट मीन्स यहाँ से क्या आएगा 0 इक्वल टू 2y y माइनस 4, दैट मीन्स y माइनस 4, ओके, इज इक्वल टू 0। तो आइदर y का वैल्यू 0 और y माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से y इक्वल टू 4, दैट मीन्स क्या हुआ y के दो कोऑर्डिनेट आए, एक 0 और एक 4 आया, x के एक कोऑर्डिनेट, हेंस ओके कोऑर्डिनेट ऑफ b इज क्या हो जाएगा 1 0 1 0, देन कोऑर्डिनेट ऑफ d इज, ओके, x का तो 1 कॉमन है, y का 0 के बदले 4 हो जाएगा, ओके, so that will be the answer and this is the solution of the question number 4. Students, now question number 5, the class X students of secondary school in Kirshinagar have been allotted a rectangular plot of land for their gardening। देखिए ये plot of land है गार्डनिंग की एक्टिविटीज के लिए। सैपलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। देखिए 1 मीटर के डिस्टेंस पर ये गुलमोहर का ये प्लांट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पूरे बाउंड्री पर है। There is a triangular grassy lawn in the plot। देखिए ट्रायंगुलर ग्रासी लैंड है ये PQR। So students are to sow seeds। Seeds जो है of flowering plant of the remaining area। remaining area में जो है seeds को बोना है of the plot। Taking A as origin। A को origin लेना है यानी 0 0 जिसका कोऑर्डिनेट है। Find the coordinates of the vertices of triangle, okay, and what will be the coordinate of the vertices of the triangle PQR if C is the origin। अगर C origin लेना है। Also फिर सेकंड का जो है वे में एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैलकुलेट करना है और बताना है कि आप क्या व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आप ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्वेशन में क्या पाते हो अबाउट इन केस फर्स्ट एंड अबाउट इन केस सेकेंड व्हेन यू आर टेकिंग ए एज origin and when you are taking C as origin। So first of all student solution में start करते हैं जब when we take
we take, okay, A as origin. देखिए ए को जब ऑरिजिन लेते हैं तो हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स पी क्यू आर का क्या बनता है, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, ओके, पी क्यू एंड आर सच एज, okay, such as AB as x-axis and AB as x-axis and AD as y-axis को कंसीडर करते हैं। फिर देखिए P का, देखिए P का कोऑर्डिनेट अब काउंट कीजिए तो क्या आएगा, देखिए यहां से x का 3, ये सामने, ओके, P यहां है तो 1 2 3 एंड 4, ओके, सो x का, ओके, 4 है, x का 4 एंड y का देखिए 1 2 3 4 5 6 4 6, ओके, सो P जो है वह 4 6 है एंड Q जो है वह क्या होगा, देखिए Q का 3 एंड 2 3 2 एंड R का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, R का कोऑर्डिनेट देखिए, R का कोऑर्डिनेट हो गया तो ये 6 पर है और 6 और ये आपका 1 2 3 4 5 6 5, ओके, 6 5। तो यहां से आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR फॉर्मूला जानते ही हैं आप, 1/2, ओके, x1 यानी 4 हो गया और 2 - 5 प्लस x2 3, 5 - 6 प्लस 6 x3 एंड उसके बाद ये x3 और y1 - y2 यानी 6 - 2, यह स्क्वायर यूनिट्स, ओके। अब देखिए 1/2, 2 में 5 3, सॉरी -3 -12 यहाँ आया और फिर ये -3 आया और 6 में 2 गया तो 4 4 6 जा और 4 6 जा 24, ओके, तो ये स्क्वायर यूनिट्स क्या आया भाई, तो ये आ गया 19, ओके, ये 1/2, ओके, ये आ गया 15 और 24 में 15 तो 9, ये 9 आ गया स्क्वायर यूनिट्स, ओके, तो ये रिजल्ट में 9/2 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। सेकंड केस में देखिए, सेकंड व्हेन, अब कहता है कि C आप लीजिए, व्हेन C इज टेकन एज ऑरिजिन, देखिए सेकंड नंबर में है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स, पहले तो PQR के कोऑर्डिनेट्स जब C ऑरिजिन, व्हेन C इज टेकन एज ऑरिजिन, ओके, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, ओके, P Q एंड R देखिए ध्यान से, अब देखिए यहां से आपका ये टोटल 15 है, अभी देखिए काउंट करिए तो P का हो जाएगा, ओके, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके, जस्ट 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके, 12, ये 12 आ गया और ये 1 0 1 2 12 2, ओके, P का 12 2 आ गया एंड Q का क्या आ गया, देखिए Q आ गया आपका, Q आ गया यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ गया और ये 1 2 3 4 5 6, ओके,
13 and 6. Okay, 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6. ये 13 6 एंड आर का, ओके, आर का ये पी का। अब आर का देखिए, आर का कोऑर्डिनेट यहाँ है, तो आर का ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 1 2 3 10 3, ओके, 10 3, आर 10 3, ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 हो गया, और यहां से आ गया आपका फॉर्मूला वही x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ओके, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ओके। जस्ट स्क्वायर यूनिट डाल देना है। ये 6 में 3 गया तो 3, 12 3 जा 36 प्लस ये 3 में 2 गया 1 हो गया, तो 1 और 13 जा 13, और ये 2 में से 6 गया तो -40, ये हो गया -40, ओके। 1/2 ये हो गया कितना 9, 49 माइनस 40 इज इक्वल टू 9/2 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। तो आपने देखा कि कोऑर्डिनेट जब आपने सी को लिया तो क्या आया, और फिर एरिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो वी ऑब्जर्व कि दोनों केस में, इन बोथ केसेज, ओके, एरिया of triangular plot are equal. Area of triangular plot are equal. So students, just you have seen in this video from optional exercise of chapter 7 of coordinate geometry. Just I have put only 5 questions solution, and that will be very comfortable for you, because in short video it will be very good for you students to see, to observe everything, okay। अब हम अपना वीडियो को आज के लिए समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर जब आएगा तो बाकी के बचे इसी ऑप्शनल एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस हैं, लास्ट 3 क्वेश्चंस, वो मैं डालूंगा, लिंक डाल दूंगा। फिर आप फर्स्ट जो फाइल है उसके लिए भी आप देख सकते हो, और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है सॉल्यूशन उसको भी देख सकते हो। तब तक के लिए जो है मैं आपको जो है धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो है वीडियो के प्रति आप जो है अपने पढ़ाई को आप तत्परता से देखा, समझा और समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। Thanks for watching my video. Till then, goodbye. Have a nice day.